Today is a evening of restoration, और देखिए आज जो है पुनः स्थापना की शाम है। and I believe everything the enemy stole from you, God is going to restore. पूरा यकीन है हर एक वो चीज जो शत्रु ने आपसे चुराया है परमेश्वर उसकी भरपाई See, आपको करने जा रहा every है। day with the Lord is different. देखिए प्रभु के साथ हर एक दिन अलग होता है, It's not the same. ये एक जैसा नहीं होता। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? You know, a good artist, when he paints a picture, और देखिए एक अच्छा चित्रकार जब वो कोई चित्र बनाता है, every art is different. और देखिए हर एक कला या कहीं चित्र अलग होता है। Come on now, hallelujah. Yes, so with today I want you to open your Bibles with me to the book of Genesis chapter 28, please. और चाहते हैं कि आज अपना बाइबल खोले उत्पत्ति का 28वां अध्याय। Genesis chapter 28. And let's read from verse 10. और आइए पढ़ेंगे उसके 10वें वचन से। Genesis 28 and verse 10. उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसके 10वें वचन से। Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. और वचन में ऐसा लिखा है कि अब याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला गया। So he came to a certain place and stayed there all night. Why? Because the sun had set. और आगे लिखा है इसलिए वह एक निश्चित स्थान पर आया और वहां पूरी रात रहा। क्यों? You see, क्योंकि church- सूर्य अस्त हो चुका था। In those days, traveling without sunlight, without daylight was not easy. और आप देखते हैं कि उस जमाने में देखिए सूर्य की रोशनी के बिना अगर आप नहीं यातायात कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो ये आसान नहीं होता था। It was pitch dark, और पूरा अंधकार छाया होता था। especially in the deserts. और खास करके रेगिस्तानों में। There was no lights, there was no street lights, and if there was no moon, it would make matters worse. और देखिए कोई उजियाला, कोई प्रकाश नहीं होता, कोई रास्ते पर जैसे लाइट होता है वो नहीं होता था। और देखिए अगर कोई उजाला नहीं दिख रहा तो मामला और बदतर होता है। Read your Bible now. अपना बाइबल पढ़ेंगे। So he takes one of the stones of that place and he puts it at his head. और देखिए वचन में लिखा और उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर अपने सिरहाने रख दिया And he lay down in that place to sleep. और उस स्थान पर वो सो गया। What follows is interesting. Verse 12. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth. और देखिए वचन में लिखा है फिर उसने एक स्वप्न देखा और क्या देखा कि धरती पर एक सीढ़ी खड़ी है। A ladder was set up on the earth. और एक सीढ़ी जो है धरती पर खड़ी है। I wish I could tell you what this ladder was and how it was. Anyway, that's another teaching. And its top reached the heavens. और उसका सिरा जो है स्वर्ग तक पहुंचा है। And the angels of God were ascending and descending on it. और वहां परमेश्वर के दूत जो है उस पर चढ़ते और उतरते हैं। Hallelujah. People of God. परमेश्वर के लोगों, There was this man called Jacob. और याकूब नाम का एक व्यक्ति था And he is running away. और वो भाग रहा था। From whom is he running away? और किससे भाग रहा था वो? He's running away from his own brother Esau. अपने ही भाई एसाव से जान बचाकर भाग Esau रहा था। has vowed to kill him. और एसाव ने ऐसा शपथ खाया था कि वो उसे मार डालेगा। And Jacob's mother, who loves him very much, she arranges something so that her son goes and stays in another place with a brother called Laban. और याकूब की माँ जो याकूब से बहुत प्रेम करती थी उसने कुछ इंतजाम किया कि याकूब वहां से बचकर भाग जाए और उसके भाई लाबान के पास जाकर ठहरे। Jacob did not want to go. और याकूब जाना नहीं चाहता था। And she tells him, look, it's only going to be a few years. और फिर वो कहने लगे देखिए कुछ ही साल की बात है। But that was the last time Jacob would see his mother. लेकिन वही आखिरी बार था जब याकूब ने अपनी माँ को देखा। Hello. सुनिए, Are you listening right आप सुन now? रहे इस वक्त? That was the last time Jacob would see his mother. और ये आखिरी बार था जब याकूब ने अपनी माँ को देखा था। People of God, परमेश्वर लोगों, such tragedy. और ऐसी दुर्दशा। And Jacob is now moving out. और याकूब वहां से निकल रहा है He lays his head on a stone. और एक पत्थर पे अपना सिर धरता है And that day his destiny shifts. और उस दिन उसका विधान बदल जाता है। Come on, hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। One night can change your destiny. एक ही रात जो है आपका विधान बदल सकता One night can bring a shift in your life. है। एक रात जो है आपके जीवन बदलावट ला सकता है। God is the God of one night. Hallelujah. परमेश्वर एक रात का He परमेश्वर। will orchestrate things to shift, to bring a shift in your life, in your career. और चीजों का वो इस तरह से Yeah, इंतजाम yeah. करेगा कि आपके जीवन में, आपके करियर में वो एक बदलावट ला सके। Hallelujah. कहे हालेलुया। And that night he dreams. और उस रात एक सपना देखता Now है। there are many people, I don't want to talk about it. There are many people who take dreams very lightly. और देखिए कहना नहीं चाहते कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सपनों को जो है बहुत ही हल्के में लेते हैं। There are people who have not understood the realm of the spirit. और देखिए ऐसे लोग जिन्होंने आत्मा के आयाम को समझे नहीं है। Because the first realm of the spirit is the prophetic realm is a realm of dreams. और क्योंकि देखिए आत्मा का जो भविष्यवक्ता आयाम का पहला आयाम जो होता है वो है स्वप्न और दर्शनों का How आयाम। many understood right now? ये तो समझ रहे Well, हैं। I'm not going to talk about that. और खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। And go to verse 16. अब जाए 16वें वचन में। Genesis 28 verse 16. I want you to listen carefully. Those who have ears, listen to what the Spirit says. और चाहते हैं कि ध्यान से सुने और जिनके कान है सुन लीजिए कि आत्मा क्या कहता है। He says, surely
the Lord is in this place and I was not aware of it. और देखिए उसने कहा निश्चय ही यहोवा इस स्थान पर है और मैं इसके बारे में नहीं जानता था. Verse 17, please, if you can. He says, I was not aware of it. और वो कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता था. And he calls that name of the place Bethel. और वह उस स्थान का नाम बेतेल रखता है. Bethel. Bethel is not just a name. Can you bring it out? And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, Bethel. And this is the gate of heaven. This is the portal of heaven. और देखिए वो कहता है, वो भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है. This is the gate of heaven. परमेश्वर के भवन को छोड़ो कुछ नहीं हो सकता वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा. Do you know what that place is? आप जानते हैं वो जगह क्या थी? This was the same place where the temple would be built. और देखिए यह वही जगह थी जहां पर मंदिर बनाया गया. Hello. This was the same place, come on now, where Abraham had offered a sacrifice. देखिए ये वही जगह थी जहां पर अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया. Bethel, the house of God. बेतेल परमेश्वर का घर. You see, that is why the enemy is fighting for that place even today. और देखिए इसी वजह से हम देखते हैं कि शत्रु जो है उस जगह के लिए आज भी लड़ रहा है. If you go to Jerusalem and you see the outside place, you will say they're fighting for this. It doesn't look appealing. People, hello, are you listening to me? What I'm आप saying? यरूशलेम में जाएंगे और It's वहां dry. के इस बाहरी जगह को देखेंगे आप कहेंगे अरे इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं. ऐसा कुछ आकर्षण चीजें यहाँ तो दिख ही नहीं रही. Hello, are you getting me what I'm आपको saying? समझ में आ रहा है? There's no river, there is no nothing. कोई नदी या ऐसा कुछ भी नहीं है वहां It पर. doesn't look appealing to the eye. आंखों के लिए ये जैसा मन I've भावना है been many नहीं times दिखता. over there, and I've stood on that place and I've seen. I said, without God, that nobody would go to that place. उस जगह पर खड़े होकर How many have been to Israel? कि परमेश्वर के बिना देख कोई उस जगह I'm पे जाना telling ही you नहीं the चाहता. fact. हकीकत बता रहे हैं I आपको. stood there for nearly an hour sometimes and just looked and I said, God, there's so much of fight for this place. And the Lord says, it's not because of the place that you see in the physical. It says what happens in the realm of the spirit. और घंटे भर वहां खड़े रह के कहने लगे कि प्रभु क्या The इस जगह पे gate लड़ of रहे हैं? heaven. स्वर्ग का फाटक. Hallelujah. हालेलुया. You see, church, आप देखते कलीसिया. this is so important. I'm not going to go in there. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि But उसमें वहां नहीं चर्चा करेंगे. You can be in a place and still not be aware of the presence of God. देखिए संभव है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति से आप वहां वाकिफ नहीं There are होंगे. some people who can be aware of the presence of God and they respond to it. But there are some people, until they see something, until they feel something, until you tell them something, they are just casual. Hello, are you listening और right देखिए now? ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति को देखे वो अनुभव कर लेते हैं, वाकिफ हो जाते हैं. लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आप जब तक वो देखते नहीं है, जब तक आप उनको बताते नहीं है, समझाते नहीं है, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे. वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे, परखेंगे नहीं. It's a very rare gift to discern the presence of God. और देखिए परमेश्वर की उपस्थिति को परखने का ये वरदान बहुत ही दुर्लभ पाया जाता है. It's a very powerful gift. You enter into a place and you can discern whether the presence of God is there or not there. ये बहुत सामर्थ्यशाली वरदान होता है कि आप It's a gift of discernment. कदम रखते हैं He और says, आप पता I लगा did लेते हैं. not know और वो कहता मैं नहीं जानता था that God was in this कि place. परमेश्वर इस स्थान पर था. Write it down. You see, restoration begins with the presence of God. पुनर्स्थापना जो है शुरू होता है परमेश्वर की उपस्थिति के साथ. Can you give me that scripture? Say it, everyone. Restoration begins with the presence of God. Genesis 28:16. Say it again. Restoration begins with the presence of God. Say, see, the Lord is in this place. That's the presence of God. और देखिए प्रभु इस जगह पे है, यह है परमेश्वर की उपस्थिति. The moment he becomes aware of that, जिस पल उस बात से वो वाकिफ हुआ, God's glory, God's restoration starts in his life. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पुनर्स्थापना उसकी जिंदगी में शुरू हुई. Somebody say hallelujah. Look at the prodigal son. उड़ाओ बेटे को देखो, He is with the pigs. वो सूअरों के बीच में था He's eating the pig's food. और सूअरों का चारा खा रहा था. And one day, और एक दिन something hits him और कुछ तो होता है उसे. and says, the servants in my father's house have got better stuff than I. और वो ऐसा कहता है कि And मेरे I'm a पिता son, के I'm घर eating में all this nonsense. जो दास दासी हैं, उनको इससे अच्छा खाना मिलता है और And मैं he ये says, सब I खा will रहा हूं. arise and go to my father's house. फिर वो कहता है कि मैं उठूंगा और अपने पिता के घर में वापस The जाऊंगा. moment he understands
Everyone say, I will arise सब लोग कि मैं उठूंगा and go to my father's house. और मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा. The father's house, the moment he moved in the direction of the father's house, restoration began in his life. और जिस पल वो उठकर पिता के Yes. घर की दिशा में बढ़ा, देखिए पुनर्स्थापना उसके जीवन में शुरू हो गया. He did not, I'm not, listen, I love education. Okay, पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद करता and I stress on it. But it was not a degree, it was not a job, it was not any of these things, worldly things, that brought restoration. The moment he said, I will arise and go to my father's house, things started changing in his है. life. देखिए नौकरी या डिग्री या ऐसी Somebody say hallelujah right जिससे now. पुनर्स्थापना ला. लेकिन जिस पल उसने कहा मैं उठूंगा और अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा, जिस दिशा की ओर बढ़ा, वहीं पर पुनर्स्थापना का काम शुरू हुआ. You see, when you move away from the presence of God, देखिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, the enemy comes in, there's loss, there's things are stolen away from your life. तब देखिए शत्रु अंदर घुस आता है और फिर वहां पर चीजें आपसे वो चुरा लेता है, नुकसान आपको झेलना पड़ता है. Say it again. सभी लोग कहें Restoration begins when I encounter the presence of God. पुनर्स्थापना तब शुरू होता है जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करता How हूं. many of you listening right now? कितने समझ रहे हैं As सर? long as Saul was in the presence of God, जब तक शाऊल परमेश्वर की उपस्थिति में था, he became the king. वो राजा बना. The moment he said, "Arey, now I'm a king now. Arey, now मैं सब कुछ मेरे हाथ से कमा लिया है. मैं अभी दुबई जाके आया. मैं अभी hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? हम लोग सोचते हैं सब हमारी ताकत से हम कमाते हैं. मेरा विजडम, मैं बकरी बन जाते हैं कभी कभी. And the moment he did that, जिस पल उसने ऐसा किया, he started going down. वो नीचे जाना शुरू And हो God raised up a shepherd boy. Can you imagine that? और परमेश्वर ने उसके बाद एक गडरिया लड़के को उठाया. क्या A shepherd boy एक गडरिया लड़का becomes the king of that place. उस जगह का राजा बन जाता है Only because सिर्फ इसलिए he discerns the presence of God. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को उसने परखा. Lift your hands and say, Lord, help me to recognize your presence. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरी मदद कर तेरी उपस्थिति को पहचानने में. Restoration begins with the presence of God. पुनर्स्थापना शुरू होता है परमेश्वर की उपस्थिति के साथ. You see, church, you feel you are abandoned. और देखिए आपको ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने आपको त्याग दिया, ठुकरा You दिया. feel you are in the wilderness, nothing is happening. और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रेगिस्तान में हैं या And you जंगल में कुछ हो feel नहीं रहा. you are in the silent years, nothing, everything is quiet. और आपको ऐसा लगता है कि आप खामोशी के दौर में जा रहे हैं, कुछ होता हुआ दिख See, नहीं रहा. God uses those very silent years, that wilderness. Come on now. देखिए परमेश्वर उसी खामोशी के दौर को, उस रेगिस्तान को इस्तेमाल करता है Those season of tears आपके आंसुओं के उस दौर को to draw you closer to God. आपको परमेश्वर की ओर खींचने के लिए. Now, in those days, if you rebel against God, if you say, God, what is this? That time, you'll move away from God. लेकिन उन दिनों में अगर आप परमेश्वर के खिलाफ में बलवा करेंगे या विरोध करेंगे कि परमेश्वर ये सब क्या है, तो देखिए उस वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे. Come on, hallelujah. It can be a turning point or, breaking point. या तो या आपके लिए निर्णायक मोड़ बन सकता है या फिर आपको तोड़ने का स्थान भी बन सकता See, he said Bethel. है. देखिए उसने कहा बेथेल. Bethel is nothing but the house of God. And the house of God carries the presence of God. बेथेल कुछ और नहीं, परमेश्वर का भवन है ये, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर, परमेश्वर की उपस्थिति है. Somebody say hallelujah. Come on, loudly say hallelujah. So how does the restoration happens? Restoration happens in the presence of God. तो पुनर्स्थापना कैसे शुरू होती है? पुनर्स्थापना परमेश्वर की उपस्थिति से शुरू होता है. Now please listen. अब ध्यान से Because, listen. सुनिए. You see, there was a man called Job. देखिए अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था. Listen. सुनिए. Now this man, अब ये व्यक्ति, the Bible says he was the most richest man in the east. The Bible says that, not I. और देखिए बाइबल ऐसा Come on. कहती है, Yeah. Okay. Hello. देशों में वो सबसे अमीर व्यक्ति था. Some Bible scholars say that the book of Job was written is a book that is much ahead of the place where it was. How many listening? It was in the time of Abraham. और देखिए बाइबल Hello. कुछ विद्वान Don't go there. Please just relax. Just listen what I'm saying. No, listen. Because the Bible is not arranged chronologically. There's a Bible, chronological Bible. Come on, hello. Anybody knows what I'm talking about? जानते हैं कोई? Only one person, 2 people, 3 people. Okay. Yeah. I don't need to recommend you read it. आपको सलाह नहीं देती कि आप पढ़ें. Yeah. I'll tell you. That's another thing. ये दूसरी चीज है. So it is not just arranged according to time, seasons. It is just arranged. तो देखिए समय या That's a theology class, जमाने not के for you. और जो ऐसा था उस ऐसा नहीं किया गया है. So जैसे this किया man गया. Job, listen to me. तो ये व्यक्ति अय्यूब, It's not because he was smart, और इसलिए नहीं क्योंकि होशियार था but he used to do something. लेकिन वो कुछ करता था. Each morning, हर सुबह he would invoke the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को भड़काता था. And one day, और एक दिन
Satan comes before God शैतान आता है परमेश्वर के सामने and God boasts about Job. और परमेश्वर वहां पर देखिए अय्यूब के बारे में घमंड करता है He said, "Have you seen my servant Job?" और वो कहता है कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है And Satan is jealous. और शैतान को जलन होने लगती You है know what he says? आप जानते हैं वो क्या कहता है He says, "Yeah, वो कहता है हाँ because you have blessed him क्योंकि तुमने उसे आशीष दी है and you have put a hedge around everything he has." और जो कुछ भी उसके पास है उसके चारों ओर आपने एक बाड़ा बांध रखा है The hedge is nothing but the presence of God. और ये बाड़ा जो है कुछ और नहीं परमेश्वर की उपस्थिति ही है How many understanding right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त Anything Satan can move inside, but the presence of God he cannot move in. कोई भी हर एक चीज से देखिए शैतान अंदर घुस सकता है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को भेद कर नहीं जा सकता The light exposes the devil. और देखिए उजियाला जो है शैतान का पर्दाफाश कर देता है Hey, come on now. चलिए एक चीज शैतान डरता है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड अलग अलग मात्रा की हो सकती है. कोई कोई प्रेजेंस ऑफ गॉड आग होती है. सर कितने लोग सुन रहे हैं? में से एक जानवर जो है आग को देख के भाग जाता है. एक मशाल लगाओ भाग जाएगा वो. दिस इज व्हाट आई वाज टॉट एंड आई हैव हर्ड इट. माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी, दादाजी ने इनको बताया यू कीप फायर द एनिमल्स विल नॉट कम. आग जलाए रखो तो जानवर लोग नहीं आएंगे. इज एनीबॉडी लिसनिंग ओवर? क्या कोई सुन रहे हैं? Yes, so much they this thing. So if an ordinary predators like wolves and snakes they don't come, imagine the living presence, the fire of God. How can the demons come over there? तो जरा सोचिए Come on, अगर ऐसी आग hallelujah. से जो है देखिए Oh, भेड़िया you या need सांप to आने आ receive this सकते हैं. right now. तो He परमेश्वर की says, उपस्थिति का आग. I cannot touch his finance. I cannot touch his business. I cannot touch his children. Why? Because of the fiery presence of God. और वो कहता है कि मैं इसके पैसों Come को on now, इसके hallelujah. बिजनेस को या इसके बच्चों को छू नहीं सकता. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अग्नि में उपस्थिति ने उसे घेरे रखा है. I think in the book of Zephaniah or Zechariah, I'm not sure. Okay, right now it says, "I will put a wall of fire around you." और देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं Wall तुम्हारे of चारों ओर- what? Not eat matti ka wall. Wall of fire. आग की शहर बना या कहे दीवार Come को on, वो come घेरे on, रखी. come on. Hallelujah. कहे हालेलुया. Wall of fire. Very powerful. बहुत समझदार. So that's why the enemy cannot touch certain things. और इसी वजह से शत्रु जो है कुछ चीजों को छू नहीं सकता. And the moment you start neglecting those things, और जिस पल उन चीजों को आप नजरअंदाज करने लगते हैं. come on now, hello. चलिए सुनिए. The moment you stay, चलता है यार, अभी prayer वेयर चलता है, अभी मैं बड़ा बन गया है ना, अभी मैं थोड़ा मुन्ना भाई बन गया ना, MBBS, you become big and all that stuff. Then you lose everything. फिर आप सब कुछ गंवा बैठते हैं. The presence of God is the reason for restoration. परमेश्वर की उपस्थिति ही कारण है पुनर्स्थापना. Come on के now, लिए. hallelujah. चलिए कहे हालेलुया. So say it everyone, the presence of God is the key for restoration. परमेश्वर की उपस्थिति ही चाबी है पुनर्स्थापना के लिए. Okay, you have understood now this? अब आपको समझ में आ गया? Have you understood this now? The second thing, दूसरी चीज. go with me right now. चलिए आगे जाइए. So before restoration can come, तो इससे पहले कि पुनर्स्थापना आए God will show you परमेश्वर को what दिखाएगा you have lost. कि क्या कुछ आपने गंवाया है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अगर तुमको खुद को नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या छीन आ गया है, जब वो आएगा कैसा मालूम पड़ेगा? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You cannot rejoice over something you don't know what is gone. और देखिए जब आपको ये पता नहीं क्या चला गया तो उस चीज के वापस आने पर आप जश्न नहीं मना सकते. The Bible says, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Now you are happy because, hello, are you with me right now? Because joy नहीं है अभी. देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं भले रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे जो है आनंद और खुशी मिलेगी. So the first thing God will do is this. तो पहली चीज जो परमेश्वर करेगा वो ये है. He will show you. वो आपको दिखाएगा. He will give you discernment as where the enemy has stolen from you. वो आपको परख देगा, दिखाएगा कि कहां पर शत्रु ने क्या कुछ आपसे The moment चुराया. you start praying, coming into His presence, जिस पल आप प्रार्थना करते हैं उसकी उपस्थिति में आते हैं the Lord will start showing you. प्रभु आपको दिखाने शुरू बेटा करेगा. तू कहां पर चूक गया है? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Hello, are you understanding right now? He will start showing you. वो आपको दिखाने लगेगा. And at that time, many people get angry. और उस पल में देखिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा ना आता है. कितना खोया मैं? अरे भाई तेरे ही मस्ती से तूने खोया है. किसी ने बोला हर महीना देगा तेरे को 20%, 10%, डबल 6 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, ये ले पूरा ले मेरा. Come on now, hello, are you listening right now? Yeah, there are scammers. 2 महीना देगा बराबर, तीसरा महीना जाने दो अभी.
Write it down. So ask the Lord. Say, Lord, open my eyes to see where the enemy has stolen from me. तो प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि Come on, मैं come देख on, सकूं come on. कहां पर शत्रु ने मुझसे चुराया है. Before the enemy can steal your things, he will steal your peace. देखिए इससे पहले कि शत्रु आपकी कितने लोग चीजों को समझ रहे हैं मैं क्या चुराए, कह रहा हूं? वो पहले आपकी शांति चुराएगा. सबसे पहला शांति चुराए. अब बोले पब्लिक बोले क्या शांति 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 लेके जा शांति. Without peace, you cannot even enjoy your food. और देखिए शांति के बिना आप तो अपने खाने पीने की चीजों का भी जश्न या आनंद नहीं सच मना बोल सकते. रहा हूं भाई, मैं सच बोल रहा हूं. तुम लोग मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूं किसी के घर में ना बहुत बड़ा बड़ा खाना पकाया रहता. अरे तंगड़ी ये वो सब, उनका मुंह को देखेंगे ना खाने का मन नहीं करता. सच बोल रहा हूं. मैं कभी कभी जाता ना, ईट एंड गो, ईट एंड. आई सेड नो. वो कहते हैं खा के जाइए तो कहते नहीं. आई एम फुल. उनका मुंह देखने का, उनके घर में माहौल देखने का. और कभी कभी ना ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं पास्टर खाना खा के जाना. मतलब क्या है, दाल रोटी. और लगा तेरी तो. आर यू लिसनिंग राइट नाउ? आप सुन रहे हैं सर? देयर इज सो मच जॉय. और बड़ी खुशी होती है वहां पर. हेलो हेलो हेलो. सुनिए सुनिए. आप समझ रहे हैं मैं क्या? आप लोग तो बड़ी बाप की औलाद है ना, तो आप लोग को चिकन तंगड़ी उंगड़ी चाहिए ना आपको. लेकिन देयर इज जॉय समटाइम्स, यू नो, इन सिंपल फूड. यू नो, देयर इज सो मच ऑफ जॉय. पब्लिक हंस रहे हैं मस्त, यू नो, लाइक अ पास्टर क्या, यू नो. एंड आई कैन सी दैट दे आर नॉट रिच. और आप देख सकते हैं कि वो अमीर लोग नहीं, दे आर पुअर. गरीब हैं वे. कम ऑन नाउ. यस, आप लोगों के बारे में पता नहीं, लेकिन हम लोग जो है, मेरी माँ जो है बेचारी ना, कल की दाल गरम करके हम लोग को देती थी कड़क पाँव के साथ. अरे जाओ यार तुमने बोला ना, तुम लोग सब 5 स्टार वाले लोग हैं. There's so much of joy. और बड़ी खुशी होती है. But sometimes there are people eating, you know, malai and what not, biryani. There's no joy. कोई खुशी नहीं मिलती उनको. Come on, hello. You're in a 5-star and you're not talking also. और 5 स्टार होटल में बैठ के आप खा रहे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे. Who wants your 5-star? There's no peace. कोई शांति नहीं है वहां. Write it down. There's no peace. लिख लीजिए, शांति नहीं है. Wife is not talking to the husband. और पत्नी जो है पति से बात नहीं कर रही, Children are not talking. और बच्चे लोग बात नहीं कर रहे. हेलो अंकल. अरे हेलो बोला ही बहुत बड़ा मेहरबानी किया तू. There's no joy. कोई खुशी नहीं है वहां. Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पे? So he steals that. तो वो चुराता है ये. Have you lost joy in your relationship? क्या आपने अपने रिश्ते, You must be having a very beautiful wife, handsome husband, stud, like, you know. हो सकता है आपके पास बड़ी खूबसूरत सी पत्नी है, बड़ा आकर्षक रूपवान पति है, फिर भी मेरे baby t-shirt and all, you know, solid. Come on now, hello. Doggy chain. Come on now. बड़ा मोटा chain है. अरे तोला. गला भी ऐसा लटक रहा है. इतना बड़ा chain पहनता है भाई. लेकिन दम नहीं है. मजा नहीं आ रहा है. कुछ गलत है उसमें. So before he can steal things, money, things from you, he will steal your peace. The enemy will steal your joy. And you have to recognize this. Said everyone, recognize this. इससे पहले कि शत्रु जो है आपका पैसा या दूसरी चीजों को चुराए, वो पहले आपकी खुशी को, आपकी शांति को चुराएगा. People only recognize when their money goes. Ah, पैसा गया तेरी. और लोग सिर्फ तभी समझते हैं या पहचानते हैं, ओ पैसा चला गया. पैसा गया तो पब्लिक उठती है. Are you listening, church? The third thing. तीसरी चीज, What about your finances? आपके पैसों के बारे में क्या? Finances. Come on, hello, are you with me right now? क्या आप साथ में The हैं? attack on your finances. आपके पैसों पर वो हमला करता है. Attack on your finances. आपके पैसों पर Has हमला the करता है. enemy stolen your finances? क्या शत्रु ने आपका पैसा चुराया है? Come on now. चलिए आओ. Your relationships. आपके रिश्ते. One more thing I'll add. Has the enemy stolen your purpose? क्या शत्रु ने आपका उद्देश्य, मकसद चुराया Every है? day looks like the same day. हर दिन आपको एक ही जैसा लगता है. बोले कैसा चल रहा है? बोले चल रहा है. क्या बिडू कैसा है तू? बोले जी रहा है. अरे जी रहा है. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? It's like you lost your purpose. और ऐसा जैसे कि आपने जीने का मकसद ही आपने गंवा जीने दिया. का मकसद ही खो बैठा है. अगर हम लोग दुबई, पहले हम इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं. अरे जाने दो अभी, छोड़ो यार. तुम लोग कितना साइलेंट हो जाते हो यार. दर्द में आ जाता है पब्लिक. हीलिंग ऑयल कुछ है क्या भाई? हीलिंग ऑयल. So everybody is praying, Pastor, I want to go to Dubai. तो हर कोई ऐसी प्रार्थना कर देते हैं कि पासवान जी मैं दुबई जाना तो चाहता हूँ. पब्लिक दुबई जाती है. फिर मैं वहां पे दुबई पहुंचा. बोले पास्टर, यूएस. हेलो, मैं यूएस गया. मैं बोला वहां पे पब्लिक खुश रहेगी अभी. बोले हेलो, हाउ आर यू? वो पूछते अरे कैसे हैं आप? पास्टर पासवान जी. प्रे. अरे बोले अभी किधर जाने का तेरे को भाई?
From India you came to UAE. Now it's अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है पास्टर. अच्छा, अभी उधर गया नहीं मैं अभी तक, जाऊंगा अभी. वहां से भी पब्लिक, it's nothing big. Okay, you really want me to go to Australia? I'll go. Are you listening, church? What आप I'm सुन रहे saying? कलीसिया? So people are not happy. Why? Because they lose their purpose. देखिए लोग वहां खुश नहीं है. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मकसद गंवाया. You can stay in Chunabatti, and when you have the purpose, you will be happy. आप चुना भट्टी में भी आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मकसद हो तो आप Somebody shout hallelujah. में रहेंगे. कई The चिल्ला हालेलुया. location is not important. The presence of God is important. और देखिए स्थान या जगह महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति महत्वपूर्ण Lift your है. hand and say, I receive in the name of अपने हाथ Jesus. उठा कर मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में. God can prosper you in the wilderness. परमेश्वर आपको रेगिस्तान में भी समृद्ध बना सकता है. God can do anything, anywhere. परमेश्वर कुछ भी कहीं भी कर सकता है. Raise your hand and say, Lord, help me to understand my purpose. अपने हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मेरी मदद कर मेरा मकसद समझने के In लिए. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody say, praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो. I went to Canada. पासवान जी कनाडा गए. There people are crying. वहां पे भी लोग रो रहे हैं. Pastor, पासवान जी, I want to go to India. अरे तेरी तो इंडिया भारत देश में वापस. जाना चाहता हूं. About done. सिंह अभी जाएगा तो पब्लिक क्या बोलेगा? अरे पब्लिक के लिए जीता है क्या तू? भैया तू पब्लिक के लिए जीता है? क्या परमेश्वर के लिए जीता? No, pastor. What people will say, I'm gone and this and that. Listen, you don't live for the people. Do आप लोगों people के लिए- when you go to the restaurant, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, do people come and pay your bill or what? क्या लोग आकर आपका बिल अदा करते हैं वहां? Nobody will come. कोई नहीं आएगा. When you are sick, nobody comes. Only except the Lord and His people may pray for you. That's it. और जब आप बीमार पड़ते हैं कोई नहीं आएगा. सिर्फ प्रभु के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Look at somebody and ask them, has the enemy stolen your purpose? अपने पड़ोसी को मुड़कर पूछे, क्या शत्रु ने आपका मकसद चुराया है? किसी को मालूम ही नहीं कि मकसद मतलब क्या. जाने दो ऐसे लोगों के लिए. Next tomorrow baby classes there. Maqsad. What is maqsad? Okay. Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Go to John 10:10. निकालिए यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां So वचन. the second point, write it दूसरा down. मुद्दा. Take a time out with the Lord प्रभु के साथ कुछ समय and निकालें. say, Lord, Okay, show प्रभु. me, Lord, प्रभु मुझे दिखा. what the enemy has stolen. शत्रु ने क्या चुराया है? Sometimes the enemy steals your time. कभी-कभी शत्रु जो है आपका समय चुराता है. Hey. Your enemy steals your time. You make stupid mistakes. और शत्रु आपका देखिए समय चुराता है. आपने कुछ बेतुका गलतियां की हैं. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. Write it down. Say it, everyone. Enemy has stolen the time. सभी लोग कहें, शत्रु ने समय को चुराया. You were supposed to be in 2024. You were supposed to be at this place, but you are still not on that place. You know why? Because the enemy has stolen your time. 2024 में देखिए आपको Your इस enemy मुकाम पर has होना stolen चाहिए. your time. लेकिन आप फिर भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि शत्रु ने आपका समय चुराया. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? He's a master at stealing time. वो समय चुराने में उसे महारत हासिल है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Be careful. सावधान रहना. बोले टाइम चोरी होता. हाँ बोले टाइम चोर है वो. जो तुम्हारा काम 6 महीने में होना होता है उसको 2 साल के लिए घसीटता है. 2 साल के लिए घसीटता. आदमी परेशान हो जाता है. See what it says, John 10:10. The thief comes except to steal, to kill and to destroy. This is the mission statement of the devil. और देखिए यहाँ पर यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है. देखिए ये उसका मिशन है. Now listen, he steals. Everyone say he steals. सभी लोग कहें वो चुराता है. He steal your joy, your peace. और देखिए वो आपकी खुशी को, आपके शांति को चुराता है. Husband and wife. पति और पत्नी कितने वादे किए हैं. हनी मैं तेरे लिए वो तोड़ के लेके आऊंगा, वो पकड़ के लेके आऊंगा. Now you're fighting. अब आप लड़ रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? I'll cross the 7 seas. 7 समुद्र पार करके I'll cross जाऊंगा. the Mithi river. No, okay. Something else. Okay. कुछ और. Are you listening, church? सुन रहे कलीसिया? And now अब there is no peace. कोई शांति नहीं है. Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं Yes. He's stolen your joy. उसने आपकी खुशी को चुराया है. Kill. Everyone say kill. सभी लोग कहें. Yes, kill is, you know what is. And the last one is destroy. और Destroy is मारना, पूरा तबाह. नामो निशान मिटा देता है. This is the thing. Now look at the Lord, what he says. प्रभु को He देखिए. says, I have come. प्रभु कहता मैं आया Come हूँ. on, come on. Say it, everyone. I have come. सभी लोग कहें, मैं आया हूँ. Come on, everybody, listen. He says, I have come. और वो कहता मैं आया हूँ. That they may have life and life in abundance, life to the full. कि वे जीवन को पाए, बहुतायत के जीवन को पाए. Is anybody listening over here? You see, आप देखिए. Satan's job description does not change, but see the Lord, he says, I have come
to restore. और देखिए यहाँ पर शैतान के कार्य करने का उद्देश्य बदला नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं आया तुम्हें पुनः स्थापित करने, लौटाने के लिए। Is anybody following me what I'm saying? He kills relationship, betrayals, delays, stagnancy. और देखिए वो रिश्तों में खत्म कर देता है, देरी ले आता है, धोखा ले आता है, ठहराव को लेकर आ जाता है। Is anybody listening over here? Today I pray that if you will understand where the enemy has come and stolen things from your life. आज प्रार्थना करते हैं कि आप समझ जाएं कि कहां पर शत्रु ने आकर चीजों को आपके जीवन से चुराया है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So the first thing तो पहली चीज is restoration begins in the presence of God. पुनर्स्थापना जो है शुरू होता है परमेश्वर की उपस्थिति में। अपनी ताकत से तुम खींच नहीं सकते हो चीजों को सर। अगर पैसा खींचना है ना, पैसा तुमको खींचेगा, लेकिन जब उसकी उपस्थिति आना ना, पैसा खींचेगी सर। इसीलिए दुनिया के लोग हैं ना, वो पैसे की आराधना करते हैं। वो पैसे की आराधना नहीं करते, वो पैसे के छुपे हुए बिहाइंड की आत्मा को आराधना करते हैं। अरे सर आप नहीं सुन रहे सर, सर आप नहीं सुन रहे। परमेश्वर ने बात किया, he said he called that spirit mammon. और परमेश्वर ने उस आत्मा को जो ममोन कहा, mammon, M-A, come on now, it's a real spirit. और ये असलियत की आत्मा है। ये दुनिया के लोग पागल नहीं है, ये दुनिया के लोग पागल नहीं है। वो पूरा धन संपत्ति उसकी आराधना करेंगे वो लोग। अगर 500 की नोट गिरती है तो बड़ा किस अच्छी, 20 रुपए की नोट छोड़िए। कितने लोग सुन, अब आप लोग तो नहीं करते ना ऐसा, अच्छे लोग हैं आप लोग। See, there is worship behind that. लेकिन उसके पीछे There is a worship behind that. उस चीज के पीछे देखिए आराधना होती है। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? And I don't want to go beyond that. और उसके परे, उसके आगे नहीं But जाना as a चाहता। Christian, you don't worship money. और देखिए एक मसीही होने के नाते आप पैसों की आराधना नहीं करते। So what do? तो आप करते क्या है? You see, the devil told Jesus. देखिए शैतान ने यीशु से कहा, बाजू वाले बोल तो बाइबल पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा ना तेरे को। Listen. सुनिए। He told Jesus. उसे यीशु से कहा, देखो उसकी ऑडेसिटी देखो, उसकी औकात देखो क्या है। उसकी हिम्मत वो बोलता है यीशु भाई, और वो कहता है तू मेरे पैर पड़ेगा ना, तो ये सारा दिख रहा है ना तेरे को, ये मैं तेरे झोले में डालेगा। You know what God said? कहते परमेश्वर ने क्या कहा? He said, जा रही। He says, you shall worship the Lord your God. परमेश्वर यीशु ने कहा कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना। Come on. Everyone say worship. सब लोग आराधना। Come on. Worship is the key. आराधना करना एक चाबी है। Worship attracts the presence of God. Worship breaks the power of lust. Hey! और आराधना जो परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करती है, आराधना जो है अभिलाषा की शक्ति को तोड़ती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लस्ट क्या है पता, मैं बता दूं सीधे अभिलाषा क्या सिंपल। लस्ट मतलब क्या ना, जो चीज पे दिल नहीं बैठना उस पे चीज पे दिल बैठ जाता है। सिंपल। अरे सुन रहे हो क्या भाई? लस्ट क्या चीज है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। प्रभु बोलता है वो तुम अपना दिल मुझ पर बिठाओ। शैतान क्या करता है पता, वो दिल लेता है, तुम्हारी इच्छा लेता है और दूसरी चीज पर बिठा देता है। Yeah, so this is the thing, church. तो यही चीज है कलीसिया। The power of lust is how you break it. It's only through worship. और देखिए अभिलाषा की शक्ति को कैसे आप तोड़ते हैं, ये सिर्फ आराधना के जरिए ही होता है। It's worship. और ये आराधना है। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. जी हाँ। Can you just put the phone off? Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? So, church, कलीसिया। if you can understand this truth, अगर आप इस सच्चाई को समझ जाए ना, the presence of God only comes through worship. परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ आती आराधना से। Isn't it? The third thing, तीसरी चीज write it down. लिख Go लीजिए। with me to the book of Joel 2:25. Joel chapter 2 verse 25. Now I told you the enemy steals time. आपको बताया कि शत्रु जो है समय को चुराता है, But see what God says. लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है, I will restore to you मैं तुम्हें लौटा दूंगा the years. उन वर्षों को। It's not like you're going to go from come on. It's not like suddenly your face which is suddenly you become younger. May it happen, okay? I will restore to you the years. It's not like you go suddenly from 40 you go to 25 and say, oh my God. It can happen. Okay. But see what it says. I will restore to you the years,
The swarming locust. Now see the types of demons. The swarming locusts are eaten. The crawling locust, the consuming locust, the chewing locust. My great army which I send among you. God will start restoring time. देखिए परमेश्वर जो समय की भरपाई आपको करने लगेगा. God will start restoring time. परमेश्वर समय जो है आपको वापस लौटाएगा. What took you 5 years, God can finish in 6 months. और जिसके लिए 5 साल लग गए परमेश्वर 6 महीने में पूरा करेगा. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया. One person gave a testimony. एक व्यक्ति ने Sunday. गवाही I दी. don't want to name the person. नाम नहीं लेना चाहेंगे उस व्यक्ति का. Okay. He wanted to buy a house. वो एक घर खरीदना चाहता था. And normally in Mumbai, to buy a house, और देखिए स्वाभाविक तौर पे मुंबई शहर में घर खरीदने के लिए forget it. You take the loan, आप लोन लेते हैं your children will finish the loan. और आपके बच्चे जो हैं वो लोन पूरा It is करेंगे. not easy, sir. ये आसान नहीं है. बेचारा पब्लिक थक जाती है लोन भरते भरते. Of course, it's a scam. अलग बात है. Will not. I'm telling you, all property prices are hyped up. I'm telling you, it's madness. एकदम पागलपन है ये. But you see, church, लेकिन आप देखते हैं what takes the world so long? If the presence of God comes upon you, you will finish it in a few years. जिस चीज को संसार में ज्यादा समय लगता है देखिए परमेश्वर की उपस्थिति अगर आएगी आपके पास तो कुछ ही सालों में से पूरा You करेंगे. will say, how it happened? लोग कहेंगे कैसे ये हुआ. But let me tell you, लेकिन बताने दीजिए it will happen in the name of ऐसा Jesus. होगा यीशु के नाम में. कहां से कुछ इधर उधर से कुछ भी. Come on now, hello. प्रभु करेगा. पास्टर आपको बोलने के लिए बहुत आसान. अरे सर इस 26-27 years of ministry में मैंने ऐसे miracles देखे ना तुम बता नहीं सकते सर. प्रभु करता है. Ordinary people. प्रभु करता है. जोर से बोले प्रभु करता है. कौन सा कहे परमेश्वर करता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. I'm telling you, He's God. वो परमेश्वर है. I've seen some people and जो तुर्रम खान लोग ऐसा बैठा रहता है स्टाइल में बैठा है तो उनको कुछ नहीं होता है. ये कोई आता है ना भूला भटका बेचारा किधर पास्टर ऐसा किसी ने उसको लेके आया रहता है तो धक्का मार के पकड़ के लेके आया रहता है. उनका ही कुछ निकलता है. I'm telling the truth. चल रहे नहीं मैं नहीं आता. चल रहे और वो बाकी सिर्फ ऐसा बैठता है लड्डू सिंह जैसा है ना. ऐसा देखता है मुझे ऐसा कहां से आया ये आदमी. And next Sunday, फिर अगले रविवार next week, अगले हफ्ते they come. वो आते हैं. Pastor, हसबैंद जी as if they know me from years. और जैसे कि वो कई सालों से नहीं जानते हैं. God did it. परमेश्वर ने कर दिया. अरे ये तो last Sunday बैठा था ऐसे आंख दिखा रहा था मेरे को. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे God is merciful. He will restore to you. परमेश्वर दयालु है. देखिए वो चीजों The को आपको years बताएगा. that the locust, look at say swarming locust. I'm not getting into that. The crawling locust, these are a different type of demonic powers. और देखिए ये सब अलग किस्म की शैतानी शक्तियां हैं. Is anybody understanding right? क्या कुछ समझ रहे हैं यहाँ पर. You know, एक विचक्राफ्ट आदमी जो था प्रभु के पास आया था. एक विचक्राफ्ट डॉक्टर प्रभु के पास आया था. उसके टेस्टिमनी जो दे रहा था उसने कहा कि एक डीमन होता है जो पैसे में दीमक जैसा लगता है. Do you know Jesus spoke about it? आप जानते हैं यीशु ने इसके बारे में He कहा. said where moth and rust do not destroy. Hey, read your Bible. Jesus is master. I say यीशु ने master. कहा नहीं बोलता. जाकाई और There is a कीड़े नहीं लगते spirit. उसमें. There's a spirit that attacks your finances. ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपके पैसों पर हमला करती हैं. Very dangerous. Very dangerous. बहुत खतरनाक. Where moth, everyone say moth. It's not that moth which goes around. No. There is a spirit. और देखिए वो कीड़ा जो उड़ता है वो नहीं है, आत्मा होती है. Come on now, praise the Lord. Come on, somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो. So restoration. तो पुनर्स्थापना. God says, I will restore the time. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा समय मैं तुम्हें वापस And लौटाऊंगा. He says, what these things, what these demonic powers have eaten, have taken away from you, God says, I will pull it out of them all. और फिर परमेश्वर कहता है कि जिन चीजों को इन शैतानी शक्तियों ने Eaten. तुमसे How do you छीन लिया, eat? हथिया लिया, With your mouth. उनके मुंह से मैं छीन निकालूंगा. Hello? Hello? सुनिए God used David. परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया There was a sheep और वहां पे भेड़ें थी and the bear came. और फिर भालू आता है And the bear takes the sheep and says, this is my lunch today. और भालू आकर जो है भेड़ को पकड़ लेता है और कहता है ये दोपहर But का now मेरा the खाना है. anointing is on David. लेकिन अब अभिषेक दाऊद पर है. He whacks, he holds the beard of the boom, tak, teri to. And he takes the sheep out of the mouth of the bear. Now that is restoration. और यही है पुनर्स्थापना. That is restoration. यह है पुनर्स्थापना. Sir, why David could do that? You think an ordinary boy can beat a lion up? Forget it. Sir, that is why when the Bible says he beat up Goliath.
I said it possible because God trained him through the bear, through the lion. Come on, help me right now. परमेश्वर ने Training, hallelujah. बीच में उसको प्रशिक्षण दिया था, इसी वजह से गोलियत को मार गली सका। क्रिकेट नहीं खेला तो आईपीएल खेल सकता क्या भाई? प्रभु इसीलिए पहले उसको गली रणजी ट्रॉफी, कम ऑन ना, हेलो, बाद में लगा दिया सीधा आईपीएल में। बोला गोलियत के सामने तेरी तो गोलियत को एक ही पत्थर बस। Praise the Lord. God is training you. परमेश्वर आपको प्रशिक्षण God is bringing restoration in your life. परमेश्वर आपके जीवन पर स्थापना को ला रहा है। Church, I want to tell you something. If the ordinary man like David, ordinary person like David, God's anointing comes upon him and the restoration, he pulls it out of the mouth of the lion. He pulls it out of the mouth of the bear. God will do it for you. एक साधारण सा लड़का Lift your hand and shout an amen, चलिए somebody. अपने हाथ चिल्लाएंगे Or आमीन begin इस to वक्त। cry out and say, Holy Spirit of God. आपको पुकारना पड़ेगा, Pray, परमेश्वर lift your hand and पवित्र pray. आत्मा। Let your presence move in my life. तेरी उपस्थिति में जीवन में मंडराने I दे। turn away from my sin. तेरे पापों से मैं मुड़ I जाता हूँ। turn away from my dirtiness. तेरी गंदगी से मैं मुड़ जाता हूँ। Let there be restoration in my life. तेरी जिंदगी पुनः स्थापना आ जाए। In my finances, तेरे पैसों में, in my तेरे relationships, रिश्तों में, in my time, तेरे समय में, in my purpose. तेरे मकसदों में। Begin to raise your hand and pray right now. चलिए अपने हाथ उठा प्रार्थना करना शुरू Don't करें। look at my face. I am not the restorer. His name is Jesus. और यहाँ वहाँ मत देखिए, Pray. यीशु को पुकारें, वही Raise your voice. आवाज ऊंचा उठाएं। Pray with tears. आंसू के साथ प्रार्थना Oh करें। God, let there be restoration in the name of Jesus. अगर परमेश्वर पुनः स्थापना होने दे यीशु के नाम Those who में। are watching me, जो देख रहे हैं, those who are watching me, जो हमें देख रहे हैं, raise your voice अपनी आवाज ऊंचा at उठाएं। home and say, in the name of Jesus, घर में और कहें यीशु के नाम let में। your anointing of restoration flow. तेरे पुनः स्थापना का अभिषेक बहे। I cry out to your God. परमेश्वर तुझे मैं जो पुकारता हूँ। चीजें मैंने खोई जो हैं, चीजें मैंने खोई हैं, ओ मेरे फुलिशनेस के वजह से, मेरे पाप के वजह से, खुदा उसे रिस्टोर कर यीशु के नाम से। परमेश्वर ने राखे लौटा दे मुझे यीशु के नाम से। अपनी आवाज को उठा के प्रार्थना कर। अपनी आवाज ऊंचा उठाएं, प्रार्थना करें। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Begin to raise your voice and pray. चलिए आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना You शुरू will करें। seek the face of आप God. परमेश्वर के चेहरे को ढूंढेंगे। Today restoration will happen when you seek the face of आज God. जब आप परमेश्वर के चेहरे को खोजेंगे, पुनः स्थापना You जरूर wanted होगा। to get married. आप रुके हैं, You fell in sin. आप पाप में गिरे, Something happened. कुछ तो हुआ। God will forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। The Lord is restoring. परमेश्वर पुनः स्थापना कर रहा है। Whatever wrong decisions you made, जो भी गलत फैसले आपने लिए, cry out to God and say, Oh Lord, परमेश्वर पुकारेगा, हे प्रभु, you are God merciful. तू दयालु परमेश्वर है। Please help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। Let the anointing of restoration flow. पुनः स्थापना का अभिषेक बहे। Oh, raise your voice and pray right now. चलिए आवाज ऊंचा उठाकर Don't प्रार्थना pray करें। like a small cat. The lion of Judah lives in you. और देखिए छोटी बिल्ली के The जैसा lion of Judah lives in you. यहूदा का शेर आपके अंदर रहता है। तुम्हारे अंदर lion of Judah की आत्मा है. Hallelujah. अपनी आवाज को उठाए बहन. आवाज ऊंचा उठाएं। आज तुम किसी के लिए शोबाजी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो. तुम्हारे परिवार के सेहत के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो. Raise your voice. आवाज ऊंचा उठाएं। Because of your prayer, आपकी प्रार्थना की वजह your से daughter will be saved. आपकी Your children will be saved. आपके बच्चे Your house will be saved. आपका घर बचेगा। Today somebody pray. कोई तो आज प्रार्थना करे। Style को मारो गोली प्रार्थना करो. हालेलुया। Hallelujah. सभी लोग Somebody cried, Holy Spirit, कोई तो पुकारे पवित्र आत्मा move upon everyone. हर एक पर मंडरा। प्रभु मैं मेरी ताकत से नहीं रिस्टोरेशन कर सकता, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है। हालेलुया. हालेलुया। जोर से प्रार्थना करें इस वक्त. जोर से प्रार्थना करिए। उसकी स्तुति करें इस वक्त. उसकी स्तुति करें इस वक्त। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Holy, 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 holy. पवित्र पवित्र Spirit of the living God, move in their every area of their lives. जो परमेश्वर की आत्मा मंडराए उनकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में। Somebody pray. कोई तो प्रार्थना करें। Yes, your children, जी हाँ, आपके your बच्चे, marriage, आपकी शादी, your job, आपकी नौकरी, your business, आपका व्यवसाय, your land, आपकी जमीन, your documents, आपके दस्तावेज, your properties. आपकी संपत्ति। The Lord's restoration come प्रभु का पुनः स्थापना आए। in the name of Jesus. यीशु के नाम Your में। career, आपका career, your health, आपका स्वास्थ्य, God restore it परमेश्वर पुनः स्थापित in करें। the name of यीशु Jesus. के नाम में। Raise your hand and say, Thank you, Lord. अपने हाथ लगाकर धन्यवाद प्रभु। The anointing of restoration is upon my life, पुनः स्थापना का अभिषेक मेरे जीवन पर है, upon my family. मेरे परिवार पर है। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Open your mouth and give him praise in the house. Give him a चलिए cup अपना मुंह offering खोलो, right now. उसकी भेंट चढ़ाए इस भवन में। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. आपने कहा हालेलुया। God will not let your praise grow in vain. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जाया नहीं जाने देगा। Today is the evening of restoration. आज पुनः स्थापना की शाम है। Hallelujah. हालेलुया। आपको लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं है. अब लोगों को किसी के हाथ सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. तुमने खुदा के सामने हाथ फैलाए हैं. पापा अब्राहम ने क्या कहा पता है? इसे ए तेरे पैसे नहीं चाहिए मुझे. बोले क्यों भाई? बोले मैंने अपने हाथों को
स्वर्ग के परमेश्वर की ओर फैला है. What a God. कितना What a जबरदस्त- man, you know. कितना जबरदस्त आदमी. What a man. He says, I've lifted my hands to the possessor of heaven and earth. उसने कहा Say, कि I मैंने don't अपने want हाथ yours. स्वर्ग I और don't want पृथ्वी all के your stuff. He said, take back your stuff. अधिकारी परमेश्वर की ओर बढ़ाया है. When I read that, जब पढ़ते हैं I said, that's a man of faith. कहते हैं, यही तो विश्वास वाला व्यक्ति है. That's no wonder God called Papa Abraham a man of faith. कोई हैरानी की बात Father नहीं, of परमेश्वर ने अब्राहम What? को विश्वास का पिता नाम दिया. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारी कभी नौबत नहीं आएगी किसी के सामने हाथ फैलाने की. Yes sir. Yes sir. लोगों के हाथ फैलाने से पहले खुदा के सामने हाथ फैलाओ, भर देगा प्रभु. हालेलुया. भर देगा. हालेलुया. I want you to go to Psalm 23 verse 3. वचन खोलिए इस वक्त. चलिए, वचन निकाल, खोलिए. वचन से लगाते 30. Open your Bibles, sir. अपना बाइबल खोलेंगे. Open your Bibles. See what David said. देखिए दाऊद ने क्या कहा. Now, restoration can come in time. समय के restoration. जो spirits ने खाया है. कितने लोग समझते में क्या मतलब है? हाँ? जो spirits ने खाया है, उस spirits को के मुंह से ये lion, bear, ये सब चीजें खाती हैं सर. Okay. Now see, the restoration happens in the soul also. देखिए पुनर्स्थापना होता है प्राण में भी. Soul. Now what is the soul? Soul is your ये प्राण- emotions. प्राण क्या है? Emotions. भावनाएं हैं. आदमी का इमोशंस ठीक नहीं रहेगा, उसको टैबलेट की जरूरत पड़ती है. इमोशंस ठीक नहीं रहेगा तो उसको रम की जरूरत पड़ती है गम दबाने के लिए. नो रियली, गलत लोग नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग झेल नहीं पाते उसको. दे कैन नॉट हैंडल दैट स्ट्रेस, उस दबाव को झेल नहीं पाते, निपट नहीं सो पाते. दे ड्रिंक अल्कोहल. तो वे शराब का सेवन करते हैं. दे आर वेरी गुड पीपल, वे बड़े अच्छे लोग हैं, बट देयर स्पिरिट इज सो वीक. लेकिन उनकी आत्मा बहुत ही कमजोर पड़ी है. कम ऑन नाउ, हेल्प मी नाउ. चलिए द स्पिरिट इज सो वीक, सो दे कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर. देखिए उनकी आत्मा इतनी कमजोर है, इसी वजह से देखिए वो उस दबाव को झेल नहीं पाते. इसे मैं हम लोग दारू पिएगा अपने दुनिया में चले जाएगा. बट व्हाट दे डोंट नो इज बाय ड्रिंकिंग दैट अल्कोहल दे आर बिकमिंग वीकर. लेकिन वो इस बात को समझते हैं spirit कि is शराब का becoming सेवन weaker. करने की वजह से और भी ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं. पहले उनका कैपेसिटी. हेलो सर, मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां पर भट्टियां चलती थी. आपको पता नहीं? मैं बताता हूं आपको. ऐसा जमीन में गाड़ते थे भट्टी, और पुलिस आती थी वहां पर. हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे. Am I right? हाँ, Jew also ना, भट्टी वाला काम ना, मैं देखा है, बचपन से देखा है. I'm telling you, लोगों के घर बर्बाद होते देखे. बोनस लेके आते थे वहां पर उड़ा देते. को श्राप देते थे वो लोग. मैंने देखा है सब. But the truth is, लेकिन सच्चाई है why a person he drinks, you know why? Because his spirit man, his soul is weak. क्यों एक व्यक्ति शराब का सेवन करता है? Drugs. क्योंकि देखिए He cannot handle the pressure. उसकी आत्मा They का are प्राण बहुत broken ही कमजोर है. inside. वो अंदर से वो टूटे अपनी हुए हैं. दुनिया में जाना चाहते हैं. अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और अपनी दुनिया में जाकर उनका आत्मा और कमजोर होता है. उनका शरीर, उनका जो सोल मैन और कमजोर होता है. पहले एक बॉटल लगती थी टून होने के लिए, अभी एक पैग में टून हो जाता है. पास्टर आपको कैसा मालूम? मेरे सामने देखा है सर. जैसा जैसा उनकी आत्मा कैपेसिटी, बोलते ना मेरी कैपेसिटी 2 बॉटल की, मेरी कैपेसिटी 1 बॉटल. सर कभी कभी एक इतने से छोटे पैग में वो आदमी टून हो जाता है. देखा आपने कितने लोगों ने? वाई? बिकॉज उनको जो आत्मा है वो वीक हो जाता है. हेलो, सुन रहे हैं ना आपने? मैं रियलिटी बोल रहा हूं आपको. रियलिटी, असलियत. एंड डेविड, आई वांट टू ब्रिंग दिस आउट. देखिए इस बात को आप So if you are into drugs, if you are into alcohol, बोले सुबह सुबह मशीरी घसना है मुझे, नहीं तो दिन अच्छा नहीं जाता. अच्छा क्यों भाई? प्रभु का वचन पढ़ो ना, दिन जबरदस्त जाएगा. He restores my soul. वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित मेरे करता प्राण को क्या करता है? मेरे प्राण को क्या करता है? एक लेडी आई थी हमारी मीटिंग में. Decent, very decent looking person. She came and said, you know, she was talking like an American. है. वो देखिए अमेरिका की शैली में बोल रही थी. They brought her near the green room. वो ग्रीन रूम के पास लाया गया. I looked at her and said, इन्होंने उनको देखकर कहा I said, who drinks alcohol? She fell down. और पूछा कि शराब कौन पीता है, तो वो गिर गई. She said, I cannot sleep without a peg. और वो कहने लगी कि बिना पैग लिए मैं सो नहीं पाती. She says, I can do everything. She's a corporate manager. Without a shot, she cannot sleep. She said, नींद ही नहीं आता.
He restores my soul. Today you need restoration in your soul, my friend. और मेरे दोस्त देखिए, आज आपको आपके प्राण में पुनर्स्थापित की जरूरत People have hurt you, betrayed you. There are wounds inside on your body. है। लोगों ने आपको ठेस पहुंचाया, लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। देखिए, आपके शरीर के अंदर जो है इसे घाव हैं। And only then he will lead you in the paths of righteousness उसके for his बाद name's ही- sake. नहीं तो तुम उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वीक है. Praise the Lord. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं जब आत्मा स्ट्रांग होती है ना, तो वो जय पाती है टेम्पटेशन पर. Come on, is anybody understanding this right आप? now? समझ यहाँ पर इस वक्त? Yes. नहीं तो तुम सॉरी बोलेगे वापस गिरोगे, सॉरी बोलेगे वापस गिरोगे, सॉरी बोलेगे वापस गिरोगे. और तुम स्क्रिप्चर बोलते जाओगे, बोले धर्मी आदमी 7 बार गिरेगा, 70 बार गिरेगा. अरे आजकल पब्लिक के पास स्क्रिप्चर भी है सब. पाप करने के बाद कौन सा स्क्रिप्चर बोलने का वो भी मालूम है. Said everyone, he restores my soul. सभी लोग कहे, Yes. वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित See, करता है। grace is not grass. He restores my soul. And then what he does? फिर वो He क्या leads you in the paths of righteousness. Why? For his name's sake. और उसके बाद वो धार्मिकता के मार्गों में आपकी अगुवाई करता है। क्यों? उसके नाम के A खातिर। restored soul will be a person whom God can use. एक पुनर्स्थापित प्राण या आत्मा वो व्यक्ति होगा जिसका परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. परमेश्वर उसका नाम किसी पर भी नहीं डालता है. हेलो हेलो हेलो. बड़ी कंपनियां अगर प्रोडक्ट बाहर से भी लेती हैं तो पहले प्रोडक्ट को जांचती है, बाद में नाम लगाती है. इसी तरीके से परमेश्वर जो है अपना नाम किसी पर भी नहीं डालेगा. वो आपको पहले अंदर से बनाएगा. हालेलुया. Said everyone, he restores my soul. सभी को मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता He है। will lead you in the paths of righteousness for his name's sake. And he for his name's sake, और नाम डाल देगा, बोलेगा ये मेरा प्रभु का दास है. Today receive it in the name of आज ले लीजिए Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. It's not only about prosperity, it's not only about healing, it is about restoration. और सिर्फ समृद्धि या सिर्फ चंगाई के बारे में Something नहीं, happened. पुनर्स्थापना के बारे में भी कुछ हुआ। Something happened in your life. आपकी जिंदगी में कुछ हो गया। When you were a young lady, somebody did something wrong with you. जब आप नौजवान थी, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया Nobody knows. कोई नहीं जानता। Now you are carrying that inside of you. और आप उस दर्द को अभी अंदर लिए हुए हैं। God has to restore you. परमेश्वर को आपको पुनर्स्थापित करना Somebody say, I receive. है। चलिए कोई तो मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Go to Jeremiah 30. We close. Jeremiah 30 verse 17. Is this blessing you, sir? यिर्मयाह का 30वां अध्याय उसका 17वां वचन। Thank you, Jesus. Come on, everybody. Jeremiah 30 verse 17. Hurry up, hurry up. यिर्मयाह का 30वां अध्याय उसका 17वां वचन। Jeremiah 30 verse 17. If you're there, say yes. अगर आप मिलकर कहें हाँ। He says, I will restore what? I will restore health to you. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। Come on now, hallelujah. You heard the other day, Thursday, one lady, she had patches on her leg. और आपने देखा था एक Come गवाह on एक now. महिला आई थी She had patches on her leg. Yeah. And the Lord healed her. और परमेश्वर ने चंगा किया। The Lord healed her completely. परमेश्वर पूरी तरह She से was चंगा lifting her. I said, don't, because you're on camera. And she said, no, Pastor, I want to show you my leg. किया। और वो कह We are रही talking like this. ऐसे बातचीत कर रहे थे। And I saw her leg completely healed. पूरी तरह से उनके टांग चंगी हो गई। People of God, the Lord is really restorer. और देखिए परमेश्वर So सचमुच today, वापस लौटाता है। believe God to heal you today. Those who are watching this broadcast, believe God for your healing today. और जो लोग आज के इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, विश्वास करें परमेश्वर की आपको चंगा करेगा। Heal you of your wounds because they called you an outcast, saying, this is Zion, no one seeks her. और परमेश्वर कहता है मैं तेरा इलाज करके तुझे तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। कौन तुम्हारा इलाज करेगा? प्रभु तुम्हारा इलाज करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी मनुष्य जो फेल हो जाते हैं, इलाज से फेल हो जाते हैं। आजकल बुखार नहीं निकलता उनसे। किसी को 1 महीने के लिए बुखार होता है। कम ऑन ना, हेलो। बोले सब टेस्ट आ गए, सब टेस्ट फ्री नॉर्मल है, सब तो नॉर्मल। बोले बुखार क्यों नहीं जाता है? सर ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ खुदा ही इलाज करता है। May the Lord heal you today. प्रभु आज आपको चंगा करे। May the Lord heal you today. प्रभु आज आपको चंगा करे। Raise your hand and say, I receive my healing today in the name of Jesus. अपनी चंगाई मैं लेता हूं आज यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Is anybody listening over here? Yes. So I will give you 4 things how triggers restoration, and then immediately I want to band on stage, please. Listen to this. चलिए सुनिए इस The वक्त 4 things for restoration. Now, 4 चीजें। it's not only in the church or in the service now in the studio that you have to learn, but remember these 4 things. You have to do it every day. और देखिए सिर्फ कलीसिया में ही नहीं सीखना, देखिए आपको ये 4 चीजों को याद रखना, रोज करना है। Deliverance night, कितने लोग थे deliverance night में? कितने लोग छुटकारे की? मैंने आपको कहा था कि पानी के
ग्लास पर आपको पानी पर प्रेयर करना है, हाफ हेलो, ये 5 मिनट प्रेयर करना है और उसको लेना है, और आधे घंटे के लिए ब्लड में प्रेयर करना है। कितने लोग करेंगे? और जो डिलीवरेंस होने वाला है आपका, प्रेज द लॉर्ड। यस, वो पानी थोड़ा छिड़कना है, पाँव से पानी पीना है। कम ऑन नाउ, आर यू लिसनिंग? यस, टुडे रेस्टोरेशन होना जरूरी है। ओके, द फर्स्ट वन, पहला है, देयर आर 4 keys. 4 ऐसी चाबियां हैं। Said everyone, repentance पश्चाताप and returning. और वापस लौटना। Joel 2:12, hurry up. योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। See what it says. Return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. और देखिए परमेश्वर कहता है अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ, उपवास करते हुए, विलाप करते हुए। Now, return to me. The word return is the word turning from the world towards God. और देखिए शब्द वापस लौटना यानी कि इसका मतलब है संसार से आप मुड़ते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं। Said everyone, I will return to the Lord with all my heart. सभी लोग कहें, मैं प्रभु की ओर मुड़ूंगा अपने पूरे दिल Come on, से। everybody say, I will return to the Lord with all my heart. That is repentance. और यही है पश्चाताप। You may be a poor man, sir. और देखिए भले आपको एक गरीब You may व्यक्ति be हो a सकते broken man. हैं, आप कोई टूटे हुए व्यक्ति हो सकते No हैं, problem. फर्क नहीं पड़ता। God will accept it. परमेश्वर इस्तेमाल आपको तुम्हारे अपना पास लेगा। पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। God will accept it. तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम एकदम साधारण आदमी हो, accept it. तुम मेरे पास नहीं, तुम उसके प्रभु के पास आ रहे हो। Come on now, praise the Lord. I said praise the Lord. The second key दूसरी चाबी is fasting and prayer. वो है उपवास और प्रार्थना। Hello. If you want to see the restoration speed up, अगर आप चाहते हैं कि पुनर्स्थापना जल्दी से होए, engage in fasting and prayer. तो उपवास और प्रार्थना में जुड़ I जाएं। tell you, कहते हैं आपसे, what requires 6 years will happen in 6 months. और जिसके लिए 6 साल की जरूरत पड़ती है, Remember 6 what महीने I में हो told जाएगा। you. याद रखें जो आपको सिखाया। Tomorrow we are going to fast. आज कल हम उपवास Hey, करेंगे। hey, hey. Write down all the areas you need. लिखो जो मैं बोल रहा हूँ लिखो. Write down all the areas you need restoration. For example, point number 1. You have a business. अब मान लीजिए आपके पास कोई व्यवसाय है, Write down business. आप लिख लीजिए व्यवसाय। Children. बच्चे, उनका क्या चाहिए? उनको थोड़ा एक टॉपिक लिखो, उसके नीचे थोड़ा पॉइंट्स लिखो. Now you make that points. और आप उन मुद्दों को बनाएं। Maybe you have 10 points, 12 points, 14 points. क्या Do 10 it. 12 मुद्दे हो सकते हैं। Tomorrow we are going to fast. कल उपवास करेंगे, Wednesday we are going to fast. बुधवार को उपवास करेंगे। 2 days. Look at somebody, say 2 days. किसी को देख रहे हैं 2 दिन, No. I'm not asking money from you. So 2 days fasting. 2 दिन का उपवास। Come on now. Hello, are you there? चलिए, वो पॉइंट्स लिखना है, ऐसे ही घूमो मत। मॉल में घूमे बोले फास्टिंग कर रहा हूँ। फास्टिंग नहीं, वजन घटा रहे हो आप। So you have to write down those things. आपको चीजों को Tuesday, लिखना है। Wednesday, write down those things. On all things. You can discuss with your husband. बोले कर्जा है, अच्छा लिखो उधर कर्जा, कर्ज मुक्ति। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? बोले करियर नहीं बढ़ रहा है, ओके करियर growth. So write down these points, like 10, 15 points or 10, 12 points. You can write it down. और 10-15 मुद्दे या 10-12 मुद्दे आप लिख लीजिए। Tomorrow, कल you have to go through these points आपको इन मुद्दों के जरिए जाना है at least 3 times. कम से कम 3 बार, 3 times. Maybe in the morning, early in the morning. और हो सकता है तड़के सुबह। Father God, in the name of Jesus. पिता परमेश्वर यीशु के Now नाम you're fasting. God, I pray for my spiritual growth. पिता मैं I प्रार्थना have करता हूँ, gone down, Lord. Lord, I need this growth happening. प्रभु मुझे I want to चाहता है grow in your बढ़ोतरी। word. The spiritual growth ka points. Come on, कितने लोग सुन रहे हैं मैंने? In the night again. रात में फिर से, Come on now. Father God, I want my marriage to be healed. पिता परमेश्वर मैं चाहती हूँ मेरी शादी चंगी हो जाए। Lord, let your grace come upon my marriage. प्रभु, Now, ने तेरा stay अनुग्रह आ on जाए। that point. उसी मुद्दे पर Worship that. Now 10, 12. Hello. Now the Lord will start. भागो मत, ऐसा मत प्रार्थना करो जैसे ATM में प्रार्थना करता है ना, Father God, touch my marriage, Lord, touch my marriage, hallelujah. Next one, hallelujah, Lord. ऐसा नहीं, उस पर बने रहो। सब लोग बने रहो। सब लोग बने रहे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं? Your husband and wife बने रहो। In the night you take it up again. और रात में फिर से प्रभु के सामने। Hello, are you listening right now? Throughout the day, go through those points. दिन भर में उन मुद्दों के जरिए प्रार्थना करें। I tell you, कह रहे हैं आपसे, restoration will begin to happen. पुनर्स्थापना होने लग Lord, जाएगा। I have this loan of 20 lakh rupees. I have this loan of 30 lakh rupees. Lord, मेरे हाथ से नहीं होगा। प्रभु तू कुछ कर। याद रखना, प्रभु कुछ करेगा। Listen to me, sir. What I'm telling you. अगर तुम ऐसा ही सोचोगे ना कि हाँ, पास्टर, तुम ही कुछ जादू की झप्पी निकालोगे ना, कुछ ऐसा, पॉकेट में हाथ डाल के कुछ ऐसा पुस मारो मेरा कुछ। No, sir. God wants a restored relationship with you. परमेश्वर आपके साथ एक I will रिश्ता pray. कायम करना चाहता That है। thing will start in your life. But I'm teaching you the way. Said everyone, hey, show me the scripture. Show me the scripture. Joel 2:12. Yes. With fasting, with weeping. Everyone say fasting, with weeping,
and moaning. कभी-कभी क्या होता है? What happens when you're fasting? कभी-कभी क्या होता है जब आप उपवास The करते हैं, Lord will show you some area. प्रभु आपको क्षेत्र दिखाएगा You know, sometimes He will show you some person who you need to forgive. और कभी-कभी आपको कुछ ऐसे लोग दिखाएगा जिनको आपको क्षमा करने की जरूरत Now, है। I'm not saying go and touch their feet, you know, ऐसा कुछ ऐसा नमस्कार करो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं. Stay in your house. God will open your heart. You start weeping. You start crying. Let it happen. और आप रोने लगेंगे। Come on now. Hello, are you there? और होने दो ऐसा। Maybe it's an ex, you know, somebody you loved and fellow ने छोड़ दिया तुमको. Now don't go and say, I was thinking about you. हो गया, बैंड बज गया तेरा. Part 2 starts then. More trouble. Huh? Don't call that person. Out. Just release that person. उसको ऐसा नोट भी मत लिखो, खुश रहे and all that, है ना. तेरी तो खुश रहे. Colin, correct what I'm saying, ना. श्रुति, ऐसे ही बोल रहा हूँ तुम लोग बोले मेरे को नाम क्यों लिया? ठीक है, और कौन है आज? टैलेंट तो शादीशुदा है, इसीलिए तेरा नाम लेके कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, पब्लिक आज सोचती है पास्टर ने मेरा नाम लिया, प्रॉफेटिक कुछ रहेगा. कुछ नहीं सर. बाद में बताऊंगा. So release those people. Everyone say release those तो people. उन लोगों को मुक्त करें, जाने दें। Said everyone fasting and prayer. सब लोगों को उपवास और प्रार्थना। If you don't engage in fasting and prayer, the Bible says when you engage in fasting prayer, the wastelands will be built up. Everyone say the wastelands will be built up. और देखिए बाइबल ऐसा कहता है जब आप Yes, उपवास और प्रार्थना yes, करेंगे yes, तो उजड़ी हुई yes, चीजें, yes. उजड़ी हुई जगह जो है Sir, वो बनाए please जाएंगे। listen what I'm saying. Huh? सुनिए ध्यान The से। wastelands will be built up. और आपके उजड़े हुए स्थान जो है वो बनाए जाएंगे। Come on, hallelujah. You will see this. आप देखेंगे। I prophesy one thing over your life. भविष्यवाणी Right now. करते एक चीज की आपकी जिंदगी में। Within these 2 days, इन 2 दिनों में you will see the power of restoration. आप पूरे स्थापना की सामर्थ को देखेंगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम You will में be shocked by what God is doing. जो परमेश्वर कर रहा है उसे देखकर आप चौंक In the जाएंगे। name of Jesus. यीशु के नाम में You will have testimonies. आपके पास गवाहियां होंगी। Hallelujah. Come on. Somebody say praise the Lord. कोई जगह प्रभु की स्तुति हो। The third thing. Let's do 3 things. Third thing is prophetic declaration. तीसरा है भविष्यवक्ताई घोषणा। Come on, everyone say prophetic declaration. Come on, loudly say it. What is prophetic और declaration? ये भविष्यवक्ताई तौर पे घोषणा करना What is क्या है? prophetic declaration? भविष्यवक्ताई तौर पे घोषणा करना You क्या must prophesy over your own life. है? और देखिए आपको अपने जीवन पर भविष्यवाणी करनी I है। like what Pastor Chris said once. और पास्टर क्रिस जी ने जो एक बार कहा वो He बहुत पसंद said, है। you are the prophet of your own life. उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो। Come on, hello. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? Tomorrow Facebook change. No. नहीं नहीं। Come on now. मैंने pastor ने बोला I'm prophet. You are the prophet of your own life. Meaning, with your mouth you prophesy over your own life. आप अपने जीवन पर भविष्यवक्ता यानी कि आप अपने मुंह से अपने जीवन के ऊपर अपने हाथों को भविष्यवाणी कर उठाकर बोलिए, जो भी मेरा नुकसान हुआ है, सकते। बोले जो भी मेरा नुकसान हुआ है यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं फायदे में आ जाऊंगा. फायदे में आ जाऊंगा। Begin to say that in the name of Jesus. पहले बोलना शुरू करें यीशु के नाम में। Hallelujah. ऐसे declarations करना है आपको. Hallelujah. ऐसे declarations करना है. घोषणा करनी है आपको। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Say God shall supply all my needs और क्या परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा according to his riches and glory. उसके महिमा में धन के अनुसार In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. I'll give you an example. Listen to this. There was a man who was having a problem of alcohol. और एक व्यक्ति था जिसको शराब पीने की समस्या थी। I'll tell the truth. Listen to this. सुनिए। So this man, his wife told him तो इस व्यक्ति की पत्नी ने कहा everything he tried. सब कुछ आजमाया। So I told him, okay. I told him to tell this. He said, my body is a, I told him, I say bolo. Hindi I wrote it and give. I cannot say, Pastor will say now. My body is a temple of the Holy Spirit. Nothing unclean will come in my body. और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई भी अशुद्ध चीज मेरे शरीर में नहीं आएगी। Come on. In fact, मैं बोला लिखा था, मेरे होठों पे नहीं आएगी, मेरे शरीर में नहीं आएगी. Nothing will touch my lips. Nothing will touch me. So he said, बस इतना ही बोलना है. हाँ बोला अच्छा इतना ही बोला. And I said, in the name of Jesus. Come on now, praise the Lord. He's asked me कितना बार बोलना है. You know, और now उसने पूछा people, कितनी बार बोलना है? 100 बार बोलना है. मैं बोला नहीं. बोले जितनी बार तुम बोल सकते हो उतने बार बोलो. तो भाई साहब थोड़ा सा हटेला था अपने जैसा. He is in the train. He used to work in the VT station. VT किधर काम करता था कोलाबा साइड में. He is to keep on saying. He's a Maharashtrian guy. Keep on saying. वो कहते रहता माझा शरीर पवित्र आत्मा से मंदिर है. मेरा शरीर पवित्र Nothing आत्मा का unclean will come in my body. Nothing unclean. He said in Jesus' name. और वो कहता रहता था यीशु के नाम। After a week, हफ्ते भर के बाद listen to me. After a week, this man, ये व्यक्ति he's going with his friends now. अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। He's saying mood नहीं हो रहा है. Hello, he's saying to his wife, I'm going after the office, but mood नहीं हो रहा है बैठने का. तो his wife said, mood नहीं हो रहा तो आ जाओ ना वापस.
हेलो, इसे कुछ तो गलत लग रहा है, मूड नहीं हो रहा है. He came. I'm telling you, there was a fight between his friends. और बताना चाहते हैं उसके दोस्तों के बीच में झगड़ा. Now he doesn't have anybody to drink. So he would come with his wife for the service. तो वो अपनी पत्नी के साथ सभा में आता. They would go out, and very soon, और बहुत जल्द, within a month, कुछ महीने में, he quit his alcohol. उसे शराब छोड़ दिया. Now the prophetic declaration, भविष्यवक्ताई घोषणा, listen, सुनिए, is in the word. That is the word. 1 Corinthians 3:16. Come on, yes or no? और यही तो वचन है. पहला कोरिन्थियों 3:16. Afterwards, when he started reading the Bible, जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, he understood उसे समझ में that आया what I'm speaking कि जो मैं बोल रहा हूँ is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है. Come on, hallelujah. हालेलुया. It became a prophetic declaration वो उसके लिए भविष्यवक्ताई घोषणा बन गई. in the name of Jesus. यीशु के नाम Look में. at your hands and say, the work of my hands shall prosper for the glory of God. अपने हाथों Hey! के देकर मेरे हाथों काम समृद्ध होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your अपना mouth. मुख खोले, अपना मुख खोले, अपना मुख Look खोले. at your hands and prophesy. बोलिए भविष्यवाणी करें. Prophesy in the name of भविष्यवाणी करें Jesus. यीशु के नाम में. On the Noah app, there are many declarations. नया पर बहुत सारे How many of you know घोषणा that? हैं. ये तो जानते हैं. It's in English, Hindi, Marathi, Konkani, Telugu, Kannada, everything. I'm a teacher. I know what to do. Pastor, I don't know where it is. Men go to the men, ladies go to the ladies. उनको जाके पूछो, Madam, can you show me where the prophetic declarations are? I have this problem. So they will show you the prophetic declarations. How many of you listening right now? That's how you speak. It's all there. और सब कुछ मिलेगा आपको उसमें. It's all there. सब कुछ उपलब्ध है. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Sir, please listen to me. मेहरबानी करके सुनिए. I am not sharing this because I want something from you. I'm sharing this so that you can be restored. इसलिए नहीं आपके साथ बांट रहे ताकि आपसे कुछ पाए. नहीं Please, इसलिए thank you ताकि so आप much. पुनर्स्थापित May पाएं. God honor you and reward you and bless you. परमेश्वर आप सभी का आदर करे, आपको प्रतिफल दे, आपको आशीष दे. In Jesus' name. यीशु के Hallelujah. नाम में. Hallelujah. So the first thing, तो पहली simple चीज- keys, repentance and turning to the Lord. और सबसे पहला है कि पश्चाताप करना, प्रभु की ओर मुड़ना है. The second thing दूसरी चीज is the weapon of fasting and prayer. वो है उपवास और प्रार्थना का हथियार. I'll share with you. There's a prophet. एक भविष्यवक्ता. Okay? I don't know if I'll be meeting him. I'll tell you. This man, ये व्यक्ति every month, हर महीने इनके घर में जादू टोने के लोग थे. They're witch doctors. Everyone तांत्रिक witch लोग. doctors. And he came out of that family. और उस परिवार से वो निकल के बाहर आए. So now he came out of this. Lot of trouble. Long story short. बहुत सारी मुसीबत है. लंबी कहानी को Hear छोटा this. करके. So God told him, तो परमेश्वर ने कहा go on a 21-day fast. 21 दिन के उपवास में जाओ. So he started 21-day fast. वो 21 दिन का उपवास उन्होंने शुरू किया. Listen to this. On the 21st day of the fast, और 21वें दिन में उपवास के you know, there's something stood before him. कुछ तो खड़ा हुआ उसके सामने. Like a dead man walking. एक मुर्दा व्यक्ति चलते All जैसा. burnt, this and पूरा that. जला हुआ सब. He was scared. वो डर He गया. said, Lord, what is this? और उन्होंने पूछा प्रभु ये क्या है? He said, this is the spirit of sickness in your family that killed your father, killed your mother. और प्रभु ने कहा कि Listen to ये this. बीमारी की वो आत्मा जिसने तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को खत्म कर दिया. After 1 week, he took rest. He replenished his body. Next month, again he fasted. फिर एक हफ्ते का उन्होंने जो है आराम लिया अपने शरीर की हालत सुधारने के लिए. फिर Is it उसके बाद true, वापस से उपवास में लग गए. Not 21 days. फिर से 21 दिन के. That thing stood before him और वो चीज उनके सामने खड़ी हुई and said, I will kill you. और कहने लगी मैं तुम्हें मार दूंगी. Now he was strong in the spirit. अब आत्मा में मजबूत हो He गए थे. said, wherever you came from, और उन्होंने कहा जहां कहीं से तुम आए I हो send you back in Jesus' मैं name. तुम्हें वापस भेजता हूँ यीशु के नाम में. I tell you today, कहते हैं आज that man has a church of 30,000 people in Africa. Hallelujah. उनके पास 30,000 लोगों की कलीसिया है अफ्रीका में. You church, I'm telling you, आप लोग सुनिए. these men of God, they don't rise just like that. परमेश्वर ये जन जो है बस ऐसे नहीं खड़े हुए. That there are spirits ऐसी आत्माएं हैं. that has to break in the name of इसका Jesus. टूटना जरूरी है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी किसी के घर में लोग शराब पीते रहते हैं. बाप ने शराब पी, बाप के बाप ने शराब पी, कर्जे में गए, डूब गए. Today, let it break over your life. आज वो आपकी जिंदगी पर से Let टूट it जाए. break over your life. आपकी जिंदगी पर से Let टूट it जाए. break over your life. आपकी जिंदगी पर से टूटने पाए. Somebody raise your hands right now कोई तो अपने हाथ उठाए इस and समय say, Lord, help me today. और कहे प्रभु मेरी मदद कर आज. Today, let there be restoration in my life. आज मेरी जिंदगी पुनः स्थापना होए. Are you ready right now? Hallelujah.